Good morning, children. We are in the topic parallel lines. ये वीडियो आपको जो है 28 अप्रैल मिलेगा शायद, ठीक है ना। एंड टुडे इज only 24th. I have to prepare previously, and today I have some doubts given by students in the chapter square and square root. So today I am going to solve few problems of parallel lines as well as 2 or 3 questions of a square and a square root. So what we have to do, वर्कशीट 1 ऑफ पैरेलल लाइंस इसको भी करेंगे हम लोग। साथ ही साथ डाउट था कि हाउ कैन यू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3/16 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 7, एज वेल एज डाउट दैट फाइंडिंग द स्क्वायर रूट by estimation। तो ये तीनों और एक वर्कशीट 1 का 2-3 क्वेश्चन मैं आज करूँगा, आपको समझाऊंगा। पहले हम लोग फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चन ऑफ पैरेलल लाइंस बिकॉज स्टडी वी हैव स्टडीज पैरेलल लाइंस। सो इन द consequences I am going to take the 5th question. I don't know whether I had solved 4th question or not. 4th question मैंने शायद कल बता दिया था। तो यहाँ दिया है कि in a quadrilateral a polygon surrounded by 4 line segments in which all the sides, all the angles, all 4 angles are equal, or 4 angles are equal। a quadrilateral का नाम है ABCD। तो प्रूव कीजिए, प्रूव दैट AB is parallel to CD and AD is parallel to BC। ये हमें प्रूव करना है। Now dear, in a quadrilateral if all the 4 angles are equal, do you think what the value of each angle? You know, sum of all the angles is 360 degree. As we know, actually this is the 10th part, and previously in previous classes, I think 7 or 6, we have learned the sum of the angles of quadrilateral is 360 degree. As we know, sum of all 4 angles is 360, and it is given that all angles are equal. Let it be x. So x plus x plus x plus x is 360 degree. So what angle is x? Since 4x is 360, so simply by calculation you can find that value of x is 90 degree. So each angle of the quadrilateral is 90 degree. So here it is quadrilateral ABCD, and we had just calculated that each angle is 90 degree. Means angle A, angle B, angle C and angle D all are equal to 90 degree. What is to be proved? That AB is parallel to CD and AD is parallel to BC. Means AB is DC के parallel और AD BC के parallel. Study we have studied about the property, some property. यहाँ parallel proof करना है, तो we need to use the converse of the properties. And converse of the properties, either one pair of corresponding angles are equal, or alternate interior angles are equal, or consecutive angles are supplementary. Now here, if we have to prove that, in order to prove that AB is parallel to DC, हमें इन दो साइड को प्रूव करना है पैरेलल। तो either we have to take AD as transversal or BC as transversal। तो here corresponding angle हमें नहीं मिल रहा है, alternate interior angle नहीं मिल रहा है, but if you consider AD as transversal, तो यहाँ पर लिखेंगे
AD and BC are intersected by AD, जो कि ट्रांसवर्सल समझते हैं। तो और इसके एक तरफ के दोनों एंगल इन विच जो को इंटीरियर एंगल्स A और D है, जिसकी वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाला 90 डिग्री, तो मिलके 180 डिग्री हो रहा है। तो यू विल सी इन द कन्वर्स थर्ड प्रॉपर्टी कि इफ को इंटीरियर angles are supplementary or sum of the co-interior angles are 180 degree is 180 degree supplementary, then AB must be parallel to DC. Or in the same way as B plus C, as angle B plus C is 180 degree, 90 plus 90 180 डिग्री। तो ये तो वही हो गया ना, B प्लस सी नहीं लेंगे, दूसरा पेयर प्रूफ करना है। एज A प्लस बी, A और B 90 and 90 that is 180. तो अगेन फॉर these two sides this is transversal and these two are co-interior angles. So this implies that AD is parallel to BC. रीजन क्या देंगे? वही को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कैसे लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है। तो हमारे पास गिवन क्या है, कौन सी कंडीशंस हम फुलफिल कर रहे हैं पैरेलल दिखाने के लिए, और पैरेलल दिया रहेगा तो कौन सा कंडीशन हम इसके आगे प्रूफ करने हैं। तो दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ द वर्कशीट 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समझ गए आप, इन दोनों लाइन प्रूफ करने के लिए को इंटीरियर एंगल ये दोनों, चाहे इन दोनों का सम 180 दिखा दो। इन दोनों लाइन प्रूफ करने के लिए A प्लस बी को 180 दिखा दो, चाहे D प्लस सी को 180 दिखा दो, यू विल प्रूव द क्वेश्चन। Now the next question is, there is a figure that ये ऐसे है, ऐसे कटा हुआ एंड ऐसे, आपको नहीं दिखा। दिस इज AB, पॉइंट इंटरसेक्शन O एंड दिस इज, ये मार्क का किया हुआ क्वेश्चन में है। इन the figure BAO जो एंगल है, BAO दिस वन, ठीक है, इज इक्वल टू DCO मतलब इसके इक्वल है। BAO DCO के इक्वल, एंड साइड OC और OD इक्वल है, OC एंड OD आर इक्वल। शो कीजिए, दिखाइए, प्रूफ कीजिए। दिस इज सिक्स्थ क्वेश्चन। AB इज पैरेलल टू CD। वाह, अब देखो, AB इज पैरेलल टू CD एंड आइदर AD इज ए ट्रांसवर्सल और BC is a transversal. These two angles are equal and these two sides are equal. तो अगर ये एंगल इसके इक्वल हो जाता तो they are alternate interior angles. If these two alternate interior angles are equal, then we are able to say that AB is parallel to CD. वही कन्वर्स वाली प्रॉपर्टी जो था। बट D के बारे में हमारी कोई आइडिया नहीं, लेकिन दिया हुआ है कि A इज इक्वल टू C, और क्या दिया हुआ है, OC इज इक्वल टू OD। आखिर इन दिन इसके देने का क्या मतलब है, OC और OD इक्वल है किस में, ये ट्रायंगल OCD में। तो डू यू थिंक दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो दो साइड होते हैं उसका बेस एंगल इक्वल होता है, देन एंगल C इक्वल टू एंगल D, इज इट। इसको कहते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स।
किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके सामने वाली जो एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। नाउ गिवन क्या है, ये C जो है वो एंगल A के इक्वल है। यहाँ ध्यान से देखिए C किसके इक्वल है, तो A एंगल D के इक्वल हो गया, मतलब एंगल BAO CDO के इक्वल हो गया। विच आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और जैसे ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ, वी आर एबल टू शो दैट और से दैट रादर कि AB इज पैरेलल टू CD। ज्योमेट्री पार्ट है, इसको बड़े ध्यान से आराम से समझने का है। हमें सारे प्रॉपर्टी ध्यान में होने चाहिए। लाइंस पैरेलल करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तीन पार्ट है। वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होता है, दो लाइन को अगर पैरेलल दिखाना होता है तो ट्रांसवर्सल के किसी एक ही तरफ के ऊपर या नीचे ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, या ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, या ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, या ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। ये करस्पॉन्डिंग एंगल का पार्ट है, ठीक है। या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होने चाहिए, इधर के दोनों चाहे इधर के दोनों। या थर्ड थिंग्स, अगर इन दोनों लाइन को पैरेलल दिखना है तो इंटीरियर एंगल्स जो दोनों हैं एक ही तरफ, उन दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसको यूज़ किया और इस वाले क्वेश्चन में हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यूज़ किया। ये एंगल इसके इक्वल, ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इसके इक्वल हमने दिखा दिया, लाइन्स पैरेलल हो गया। तो दिस इज द 6th क्वेश्चन। ओके, नाउ कम टू द 7th क्वेश्चन। क्या है 7th क्वेश्चन, एक अगेन एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका एक साइड एक्सटेंडेड है ABC, एक्सटेंडेड अप टू T, एंड दिस इज गिवन एक 40 डिग्री एंगल बनाता हुआ, दिस इज 40 डिग्री ऐसा दिया हुआ है, दिस एंगल इज गिवन टू बी 75 डिग्री। और कुछ पैरेलल्स लाइन दिए हुए हैं, रादर यू कैन से दैट दिस इज पैरेलल टू दिस वन। फिगर को फिर से ड्रा कर लूँ मैं, ठीक है। ABC E, दिस इज 40 डिग्री, सॉरी 75 डिग्री। ये लाइन इसके पैरेलल दिया हुआ है, या प्रूफ करना है, जो भी दिया हो। दिया हुआ है एंगल A 75 डिग्री, CE इज पैरेलल टू AB, ये दोनों लाइन पैरेलल दिया हुआ है। एंगल CECD 40 डिग्री। फाइंड अदर टू एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। फाइंड अदर टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। मीन्स हमें ये B निकालनी है और ये पूरा C निकालना है, ये दोनों एंगल को निकालना है, ठीक है ना। चलिए निकालते हैं, निकल ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो आता ही होगा हम लोगों को। पैरेलल लाइन दिया हुआ, सबसे पहले हम लोग पैरेलल लाइन दिया हुआ उसकी बात करते हैं। सिंस AB इज पैरेलल टू C, अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल दिख रहा है और ये भी एक ट्रांसवर्सल दिख रहा है, दो ट्रांसवर्सल, ये भी कट कर रहा है और ये भी कट कर रहा है। तो पहले इसकी बात करें। एंड BC इज ए ट्रांसवर्सल, BC इज ए ट्रांसवर्सल। फिगर में आप AC को उड़ा कर देखो तो क्या होगा, एंगल B यानी ABC मस्ट बी इक्वल टू EC, यहाँ तो D दिया हुआ था ना, ECD, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल है, लाइंस अगर पैरेलल होते हैं तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ABC इक्वल टू ECD, और ECD तो दिया हुआ है 40 डिग्री, तो निकल आया 40 डिग्री, ठीक है। तो अब तीसरा एंगल ट्रायंगल ABC, क्या जानते हैं आप, A प्लस B प्लस C होना चाहिए कितना, 180, जिसमें से A दिया हुआ है 75, B अभी अभी हम लोगों ने निकाला 40, तो C भी निकाल लेंगे।
What is C then? 180 minus 75 plus 40, I think it is 115. So it will be 65 डिग्री. एंगल C क्या हो गया? 65 डिग्री. अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट एंगल इज AC. अगर पूछ दे कि व्हाट एंगल इज फाइंड आल्सो AC, तो आप ये 65 निकाल लिया, ये 40 है, तो ये तीनों एंगल का सम तो 180 होना चाहिए ना. या फिर उससे क्या, ये लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो दीज टू आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो यहाँ से 75 निकल जाएगा ये. और इधर से भी 75 40 निकाल के 180 से निकाल के इधर से भी आप 65 निकाल सकते हो. तो दिस इज थर्ड क्वेश्चन टुडेज, बट एज ए होल 7th क्वेश्चन ऑफ द वर्कशीट. ठीक है. एक क्वेश्चन और करते हैं, 8वां 8th. यहाँ पर अगेन दिया हुआ है लाइन L इज पैरेलल टू M. ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है. L इज पैरेलल टू M गिवन है ये. फिर एक ट्रांसवर्सल दिया हुआ है. ये एंगल यहाँ पर 40 डिग्री है. कितना है? 40 डिग्री. एक और ट्रांसवर्सल ऐसे है, यहाँ पर दिया है 110 डिग्री. कितना दिया हुआ है? 110 डिग्री. देन कुछ वैल्यूज अननोन दिए हुए हैं. दिस इज y, दिस एंगल इज y, दिस एंगल इज x एंड दिस एंगल इज z. इन तीनों की वैल्यूज आपको निकालनी है. ये q हुआ, इसको p आप मान लीजिए, ये लाइन p है. ठीक है ना. सो L इज पैरेलल टू M, p एंड q आर ट्रांसवर्सल. अलग अलग केस में हम लोग अलग अलग काम करेंगे. तो देखिए, ट्रांसवर्सल है तो जो यहाँ 40 है वो इसके बराबर होगा. ठीक है ना. 40 जो है, या हम इसके अपोजिट यहाँ 40 ले लें, फिर सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल ले लें. सो इफ़ यू आर गोइंग टू लेबल इट, नाम अगर उनका आप देना चाहें, तो हम लोग ये लिख लेते हैं. सपोज कर लो ये A है, मान लेते हैं दिस एंगल इज A. सो 40 डिग्री इज इक्वल टू A. क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल है यार, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. तो A हमारा 40 हो गया. ऑल्सो A प्लस वाई 180 होना चाहिए. y लीनियर पेयर, लीनियर पेयर. एक ही लाइन के दो तरफ, एक लाइन है और एक कट किया, तो दोनों तरफ के एंगल 180 होते हैं. A हमने क्या निकाला? 40. तो y क्या निकल आएगा? डू यू थिंक y इक्वल टू 140 डिग्री? तो y निकल गया 140 डिग्री. अब क्या करेंगे? फिर से देखिए, L इज पैरेलल टू M एंड Q इज ट्रांसवर्सल. Q इज ट्रांसवर्सल. तो क्या हो गया? X इज इक्वल टू 110. क्यों? वही पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. यहाँ पर देखिए, ये दोनों लाइंस हैं पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है, तो इसके एक ही तरफ के ऊपर वाले दोनों एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल. सो X इज इक्वल टू 110 डिग्री. और इन द मीन टाइम यू से दैट x प्लस z जो है वो 180 होगा. किस प्रॉपर्टी से? लीनियर पेयर से. तो x उसमें 110 है, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट z? आई थिंक z इज नथिंग बट 70 डिग्री. सो z इज 70 डिग्री, x इज 110 डिग्री एंड y इज 140 डिग्री. These are the three values you have calculated. क्लियर है? तो ये हुआ आज के हमने लिए क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 and 8. 4 question. And we have already, I had already said कि today I am going to take 3 questions from a square and a square root. So let us try to do it and hope you will find useful for others too. Question is, these questions are doubt of the one students, but it is useful for all other students also. Okay? हाँ तो बच्चों, let us take, ये क्वेश्चन था मेरे PPT 4 का, जो मैंने असाइनमेंट दिया था उसमें
एक क्वेश्चन पूछा गया है 3/16 का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, और 7 का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हो। एस्टिमेशंस में हमने दिया था 90 का निकालना और 150 का निकालना। तो इसको मैं लेता हूँ और उम्मीद है कि इससे आप समझ जाएंगे कि कैसे करना है। तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल, you know the 16 is perfect square, okay, well and good, but 3 is not. 3 is not. So this can be written as 3 by root 16, and root 3 is root 3, but root 16 can be written as 4 because 16 is a square of 4. So square root of 16 is 4, and then you simply find the square root of 3. Okay, and in order to find a square root of 3 as well as you can find a square root of 7, same process. कैसे, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर मैं 3 को बताऊं 7 समझ जाओगे। अब यहां पर नहीं दिया हुआ है कि हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर। सपोज हम मान लेते हैं 2 ऑर्डर तक, 2 डेसिमल तक, तो 3 लिया, और करेक्ट 2 होगा तो 3 पेयर्स हमें चाहिए। हम करेक्ट पर ही बात करते हैं। 3 पेयर हमने बना लिया। अब ये 7 होता तो यहाँ पर मैं 7 लिखता, ठीक है ना। एंड देन यूज द डिवीजन मेथड। 3 इज सिंगल डिजिट, डेसिमल के पहले एक ही डिजिट है तो ये अनपेयर्ड है, तो 1 से 1 टाइम लगाएंगे क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा, 2 तो 1 टाइम लगा। इन दोनों को ऐड कर देना है, 2 लिख दिया, ठीक है ना। अब डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल, और 1 पेयर ऑफ जीरोस हमने उतार लिया, ठीक है। अब थिंक अबाउट ए नंबर। मान लो अगर हम इसको सोचते हैं 5 सोचते हैं तो 25 हो जाएगा। 25 5 जा 125। चलिए एक और सोचते हैं 26 6 जा, तो 26 6 जा आई थिंक ये हो जाएगा 156 और समथिंग। 26 6 जा 3 156। थोड़ा और सोचते हैं 27 7 जा 7 7 जा 49 7 189। 28 8 जा 8 दूनी 16, ये 200 से ज़्यादा हो तो 7 टाइम्स में हम आ रहे हैं, 7 टाइम्स। ओके, तो 7 टाइम लगा दिया, क्या है 189। 11 घटाने से इसको जोड़ देंगे 34, और 1 पेयर 0 और उतार दिया। अब सोचेंगे एक और नंबर। 1 सोचेंगे तो 341 बाई 1 से 1 से इंटू करना होगा 341। 2 से 600 के आसपास, 3 से 4 से लगाएंगे तो 4 3 12। 4 से तो नहीं लगा, 3 से लगा कर देखते हैं। उस सम के बाद एक और डिजिट सोचना है, उसी से मल्टीप्लाई करना होता है डिवीजन मेथड में। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, एंड 3 3 जा 9 एंड 10 लग गया। 4 से लगाते ज़्यादा हो जाता, तो दिस इज 3। ओके, घटाते हैं 170, एंड इसको ऐड कर लेते हैं 3 4 6। एक और उतार लिया। अच्छा, 1 लगाएंगे तो 3461 से 1 टाइम्स 3000। 2 से लगाएंगे तो 64 34 68 के आसपास होगा। 3 से लगाने से 90 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स लगाने की उम्मीद है, लगने की। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 9, 2 3 जा 6। ओके, 2 टाइम्स लगा। सो व्हाट वी गेट, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज 1.732। क्लियर है? Square root of 3 is 1.732, and we have to find square root of 3 by 16, that is the square root of 3 by 4। हमने 1.732 निकाला, 4 से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा? डिवीजन कर लोगे आप, डिवीजन तो आता होगा। 4 टाइम्स 3 टाइम्स 433 आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन रूट फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ 3 by 16। यार डिनोमिनेटर 16 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर था, इसलिए सिर्फ हमें ऊपर का निकालना पड़ा, ठीक है ना बेटा। क्या होता अगर वो नंबर जो है 16 के जगह कोई ऐसा नंबर होता जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, क्या होता? ठीक है, चलिए इसको समझ गए। अब रूट 7 को भी बेटा ऐसे ही बना लेना आप, रूट 7 को भी ऐसे ही बना लेना। क्या करना, 7 पे वही
अगर करेक्ट टू कुछ प्लेसेस नहीं दिया हुआ हो तो मैं देख के बताता हूँ क्वेश्चन। अभी मैं देखा था जस्ट, असाइनमेंट मेरा खुद का दिया हुआ था, देखता हूँ क्या है वो। अभी 4th पीपीटी का स्लाइड कौन सा है? यस, वर्कशीट इस पर है ना। अच्छा, इसी वर्कशीट का ही होगा। स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। करेक्ट टू जो 7 को निकालना है, करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल में वी नीड 3 पेयर्स। 2 प्लेसेस तो 3 पेयर्स, 3 प्लेसेस तो 4 पेयर। अगर करेक्ट टू लिखा हुआ तो 7 डेसिमल 0000000 वी कैन राइट। जितना जीरो चाहो उतना लिख डाल सकते हो डेसिमल के बाद। तो 7 स्टिल इट इज 7 एंड नाउ सेम डिजिट एज वी हैव डन इन √3। सो 2 2 जा 3 3 जा 9 जगह 2 लगाया हमने, 2 2 जा 4 और 2 2 जोड़ने पे भी आया 4, घटाया 3, डबल 0 उतारा, 7 चुका 28 नहीं चलेगा, 7 4 जा 28, कैरी से 4 जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, 6 लगा के देखते हैं। 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 4 जा 24, 24 और 3 27, सो वी 6, यहाँ 24, एक पेयर और उतार लिया। ठीक है, इसको ऐड कर लिया, 52 हो गया। 5 से करेंगे तो 25 हो जाएगा, यहाँ 24 ही है तो 4 बार लगाते हैं। 4 4 जा 6, 10, 4 2 जा 8, 1 9, कैरी एंड 4 5 जा 20। कितना बार लगा? 4 टाइम्स। अब चेक कर लेना, 6 5 बार लगेगा तो ज़्यादा हो जाएगा 24 से। 4 0 3, ठीक है। 1 पेयर और जो बचा हुआ है उसको उतार लिया, इनको ऐड कर लिया तो ये हो गए 5 2 8 साहब जी हो गए। अब एक ऐसा नंबर सोचो जिसको इंटू करने से वो नंबर 30400 हो जाए या उससे कम। क्योंकि 7 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए इससे कम ही कोई नंबर आएगा, कटने वाला यहाँ पर नहीं है। 6 से करने पर 6 5 30 आ जाएगा, लेकिन 6 2 जा 12 और इधर से कैरी होके कुछ ज़्यादा 6 से नहीं लगना है, 5 से ही लगा के। 6 से आप चेक कर सकते हो चाहो तो, 5 2 8 6, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 8 जा 48 3, 51 कैरी 5, 6 2 जा 12, 5 17 1, ये 31 हो जा रहा है। तो 6 से तो नहीं लगेगा, तो 5 से हमने लगाया तो ये हो गया 5 5 5 जा 25, 5 8 जा 42 42, कैरी 4, 5 2 जा 10 4 और ये हो गया 1 5 5 जा दिस इज। सो सब्ट्रैक्शन में जो भी आया घटा लीजिए। हमारा जो क्यूब रूट स्क्वायर रूट 7 आया उसकी वैल्यू आ रही है 2.645। क्वेश्चन क्या था? करेक्ट टू 2 प्लेसेस, तो 2 प्लेस डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस के बाद ये हमें एक लाइन खींच देनी है एंड इसको सोचना है ये क्या है, ये नंबर मोर देन 5 या इक्वल टू 5 है। 5 और 5 से ज़्यादा अगर कोई नंबर होता है तो उसको कर दीजिए गोल, गायब, और उसके बदले में इस डिजिट में 1 जोड़ दीजिए, तो 64 + 1 बिकम 65। दिस इज द आंसर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 7। आई थिंक जिस बच्चे ने पूछा वो भी समझ गए होंगे और बाकी लोग भी समझ गए होंगे। ओके, अभी एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं जिसमें मैंने कहा कि क्या हो अगर, ठीक है, डिनोमिनेटर में जैसे 3/16 में 16 अगर वो परफेक्ट स्क्वायर था तो उसको अलग कर लिया, लेकिन अगर वो परफेक्ट स्क्वायर ना होता तो क्या होता? ठीक है, उसको देखते हैं। एक नंबर लेते हैं, सपोज कर लीजिए हमने नंबर लिया क्या नंबर लें, 5/6, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए 5/6 लेंगे तो पहले क्या करेंगे, दोनों में से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर रूट निकालेंगे। थोड़ा सा ये हॉट्स टाइप का है, तो 5 को आप इधर पहले बेटा डिवाइड कर लो,
इफ इट इज गिवन करेक्ट टू 3 प्लेसेस डेसिमल और करेक्ट टू 5 प्लेसेस डेसिमल, जितना भी दिया रहे उसका डबल से एक पेयर और ज़्यादा हमें चाहिए, मतलब डेसिमल के बाद। चलिए, ये तो लग ही नहीं रहा, तो शुरुआत ही होता है इसका डेसिमल से। एक जीरो डाल देते हैं। 6 8 ज़ा 48, 2 0, 6 3 ज़ा 18, फिर 2, ओ फिर 3, गजब। अब ये केवल 3 3 ही आता रहेगा, ये कटेगा नहीं कभी, और 3 3 आता रहेगा। तो हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। मान लो करेक्ट टू 2 प्लेसेस तक, तो 8 और 3 तो फिर लगातार जितना मन हो उतना लिखना चाहिए। तो हमें तो सिर्फ 3 पेयर चाहिए, तो हम यहाँ पर 3 पेयर बनाने के लिए उतनी बार ही रिपीट वाला चीज़ लिखेंगे जितना हमें करना है, एंड बाकी जो है फिर सेम प्रोसेस। अब यहाँ पर डेसिमल जीरो शुरू आता है, तो सबसे पहला पार्ट इसको लेते हैं, ठीक है ना। 83 9 बार सोचेंगे, ठीक है कि नहीं। 9 बार सोचा, 81 2 3 3 यहाँ 18, एक बार में हो गया, ये तो 9 हुआ, फिर 1 हुआ, 181, 1 ऐड कर दिया, 182, इसको घटाया 2, 13 से 8 या 5, ख़त्म। अब फिर एक 3 3 उतार लिया, 2 बार ही लगेगा, 3 बार में 18 54 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार लगा दिया, दिस इज़ 2। तो ये 5/6 का 0.912, और करेक्ट टू 2 प्लेसेस है तो इस पर लाइन लगाएंगे, और ये नंबर चूंकि 5 से कम है तो सीधे सीधे इसको हटा देंगे, और कुछ भी जोड़ना घटाना यहाँ नहीं है। तो 0.91 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5/6. I hope you can understand. Okay, and now we are going to find the square root by estimation. So I am taking root 90 for estimation. Okay, इसको ध्यान से समझिए। रूट 90 हमने एस्टिमेशन में एग्जाम्पल में बताया था रूट 10 को लेकर। रूट 10 को बताया था कि ये किस दो कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स में है। तो वहाँ पर जो 10 हमने बताया था कि 10 जो है वो 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में है। Am I right? यही कहा था ना कि क्या कहा था, 4 और नहीं सॉरी 3 और सॉरी 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर के बीच में था, ये बात किया था हमने, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 90 किसके बीच में है, तो 90 इज जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 81 यानी 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर के बीच में है, ठीक है। तो या तो इधर से थोड़ा आगे बढ़ो या इधर से थोड़ा कम आओ। 9 एंड 10 आर द 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। सो जो कम होना है वो डेसिमल में आना है। जैसे 10 से कम हुआ तो मान लो हमने 9.5 सोचा। देखो दो बातें होंगी, अगर इससे कम हो रहे हैं 9.5 का स्क्वायर करेंगे या तो 90 से बड़ा ही रहेगा या 90 से छोटा हो जाएगा, डजंट मैटर, दोनों ही हालत में हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो 9.5 और 9.5 को इंटू करके देखते हैं, एस्टिमेशन है। तो 5 5 जा 25, 5 9 जा 45 एंड 7 47 हो गया, 9 5 जा 45, 9 9 जा 81 और 4 हो गया 85। ऐड करके देख लेते हैं, 5 2 7 5 12, 5 4 9 and 10 and this is 9. It is still greater than 9, ये हो गया 90 पॉइंट। सो क्या देख रहे हैं हम लोग कि वो आफ्टर एस्टिमेशन स्टिल 90 इज इन बिटवीन दिस वन, यानी अब 10 तक तो जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो 9.5 पर आ गए। अब इससे एक कम करो, हम सिंगल डिजिट की भी बात कर रहे हैं, सिंगल डिजिट पर ही बताएंगे आपको। 9.4 एंड 9.4 एक कम करते हैं क्योंकि ये बहुत नज़दीक आ गया। 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 37 हो गया, 9 4 जा 36 कैरी 3, 9 9 जा 81 और 3 84। ऐड किया 6, this is 3, this is 8, this is 8. Oh, now this number is less than 90. So what we find
कि 90 इज इन बिटवीन 9.4 होल स्क्वायर एंड 9.5 होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये जो 90 नंबर है, सो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 9.4 और 9.5 के बीच होगा। अगर ये सिंगल डिजिट की बात है, ऐसे क्वेश्चन आपको सिंगल डिजिट के ही पूछे जाएंगे, क्योंकि डबल डिजिट में जाना होगा तो फिर हमको इन दोनों के बीच में आ गया। तो अब हमें 9.5 से छोटा अगर जो देखेंगे तो 9.49, ये एक्चुअली दो डिजिट में इसको समझो, 9.40 और 9.50। अब अगर दो डिजिट में जाना होगा तो आपको 9.45 पर देखना है कि व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 9.45। तो इसको इंटू करके 9.45 को एक बार चेक करेंगे कि इसका स्क्वायर क्या होता है जी, मतलब इनको इंटू करने से क्या होता है। तो इट टेक्स टाइम, एस्टिमेशन में जो है टाइम को भी हमें एग्जाम में देखना है ना कि कितना टाइम लगना चाहिए इंटू करने में। बच्चे को इतना बड़ा दे दें तो जो इसका आप दो बार इंटू करोगे तो इसकी वैल्यू मान लो आता है, ये जो भी वैल्यू आएगा हमें लगता है कि इसकी वैल्यू 90 से कम हो जाएगा। तो इसका मतलब द स्क्वायर रूट ऑफ 90 लाइज बिटवीन 9.45 और 9.50। तो फिर हम क्या करेंगे, 9.45 से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, 9.46 पे जाएंगे डबल डिजिट के लिए। तो फिलहाल हम डबल डिजिट पे आपको एक प्रोसेस बता दिया। अब हमने आपको केवल सिंगल डिजिट पे रखना है। सिंगल डिजिट पे ही क्वेश्चन हमने भी आपसे पूछा है। व्हाट वी फाइंड दैट इट लाइज बिटवीन, अगर डेसिमल को छोड़ दो तो 94 एंड 95 आर द टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। सो 90 लाइज बिटवीन 9.4 स्क्वायर एंड 9.5 स्क्वायर। 9.4 स्क्वायर इज कितना था, 88.36 एंड 9.5 स्क्वायर इज 90.25। तो 90 किसके ज़्यादा नज़दीक है, इसके कि इसके? इसके ज़्यादा नज़दीक है। तो एस्टिमेशन में स्क्वायर रूट ऑफ 90 इज 9.5, ठीक है ना। इसी बीच में और लिख देना है, और क्या कि नाउ वी आर टेकिंग, we know that the 90 lies between the square of 9 and the square of 10. Now we take a number which is just less than 10, 9.5, and finding, उसके बाद आप वहाँ कैलकुलेशन में इस चीज़ को दिखा दो 90.25। ये रफ नहीं होगा, सामने होगा। फिर आप अगले स्टेप में जब ये आ जाएगा तो ये लिख देना। फिर आप 9.5 से थोड़ा कम आओ, 9.4 पर आया तो देखा कि वो नंबर 90 से कम हो गया। दैट मीन्स अब ये जो 90 है वो 9.4 के स्क्वायर और 9.5 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। सिंगल डिजिट है, ये डेसिमल अगर हटा देंगे तो 94 95 देख रहे लगातार। अब इसके बीच में कोई सिंगल डिजिट का कोई क्वेश्चन आ नहीं सकता। तो हम देखेंगे कि अब इन्हीं दोनों के बीच में है, और इन दोनों में इसका जो स्क्वायर है वो 90 से नज़दीक है इसके मुकाबले। ये लगभग 1.64 कम है और ये सिर्फ 0.25 ज़्यादा है। तो ये नज़दीक है 90 के। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 90 बाय एस्टिमेशन मेथड इज 9.5. Is it okay? I think it should be okay. If you think that I should go for 150, okay? 150 उसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 150 जो है वो किस दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में है। तो 150, एक तो 12 स्क्वायर होता है, 144। देखो परफेक्ट स्क्वायर हमारे हिसाब से आपको 30-40 तक के याद कर लेने चाहिए कि व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 12, 13 स्क्वायर, 14 स्क्वायर वगैरह वगैरह। सो दिस विल यू फाइंड दैट दिस इज 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर। नाउ सीधे सीधे चले आओ 12.5 पे, एकदम जो आसानी से जो हो जाए। तो क्या यहाँ पाएंगे हम लोग, इंटू करने पर ये सब आ रहा होगा 1 to 5। ऐड कीजिए 5 2 16 5 एंड 1, कितना है 151625। डेसिमल यहाँ पर आएगा। दैट मीन्स 156.25 is still greater than 150. So this 150 is lies between 12 square and 112.12.5 square. Okay. After that, we move on the next one. 12.4. 12.4 पे जाते हैं हम लोग। 4 4 are 16, carry 1. 12 4 are 48 and 9, 49. This is 248 and this is 124. 6 9 8 17, carry 1. 4 3 are 12 and 1 13, carry 1. 2 2s are, oh, still the number is greater than 150. So again we find that 12 square 150 lies between
12.4 स्क्वायर। ओके, अब 153 पे आया। तो एक बार हम लोग अगर और ज़्यादा नीचे चले जाएं तो कहीं ज़्यादा कम होने पर फिर उससे आगे बढ़ के चेक करना पड़ेगा। सो आई एम जस्ट डूइंग 12.3। क्या मिलता है? 3 3 जा 9, 36, 6, 24, 1 2 3। अभी भी ये 50 से ऊपर ही जाएगा। 3 4 4 10 11। Yes, still we find that 12 square 150 lies between. Now one more times we are going to find the square of 12.2. 2 4 4, 2 2 za 2 4 4 and 1 2 2, 4 8 8 4. Now here it becomes less than. So what we find that 150 is in between 12.2 square and 12.3 स्क्वायर। नाउ एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, उधर तो मिटा दिया मैंने, मुझे याद भी नहीं है कि वो नंबर कितना था। 12.3 का होल स्क्वायर कितना था? क्या था जी? 12, जस्ट रिमेंबर व्हाट इज दिस, क्या था 12.3 151.29 था शायद ये रहा होगा, यही होगा। देख लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 36 9 2 4 6 and 1 2 3, तो 9 12 11, यस 1 5। ओके, नाउ इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी हमें? ये तो पता चल गया इन दोनों के बीच में है। अब वो 12.2 और 12.3 के बीच में और कोई नंबर अब है नहीं सिंगल डिजिट में, तो इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा एस्टिमेशन में। ये दोनों नंबर जानने की इसलिए ज़रूरत है कि इन दोनों में से 150 के नियरर कौन है। ये 1.29 ज़्यादा है और ये मतलब इसका डिफरेंस इससे देख लो 148.84, तो ये मिलेगा 6 1 और 1.16, और ये मिला 1.29 ज़्यादा, ये 1.16, मतलब ये ज़्यादा नज़दीक है। नीचे पीछे वाला जो है वो ज़्यादा नज़दीक है 12.2 का स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट ऑफ 150 is 12.2 by estimation. Why? Because 148.84 and 151.29 में 148.84 is nearer to 150 than 151.29. Clear? So this is what finding the square root of a number which is not a perfect square by the method of estimation, and hope कि all of you will satisfied with the solution, and hope so you will get the idea of finding the square root by estimation method. So this is the doubt of questions from squares and square root. Actually we are in the chapter parallel lines, and we have to discuss about the rest of the questions or concepts of the parallel lines in the next day. So have a nice day. Thank you very much.